آپ کو شہر کون سا اچھا لگا ہے؟ مجھے درادم کھیل اور دھن اثر. یہ جو آپ نے ان کو ٹریننگ دی ہے، یہ شادی سے پہلے دی تھی، شادی کے بعد یہ ٹریننگ دی ہے، وہ کیا نکاح میں یہ شرط تھی کہ آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا پیدل؟ کیا ان کے اہل خانہ نے آپ سے نہیں کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، خود تو جا رہے ہو پیدل، اب ہماری بیٹی کو بھی ساتھ پیدل گھماؤ گے؟ لائک کرتے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹی دی ہے نا، لائک نہ کرتے پھر کون دیتا ہے؟ آج میں آپ کو صحت کے شوقین ایک ایسے جوڑے سے ملوانے جا رہا ہوں جو کراچی سے پیدل چلے ہیں، وہ پشاور آئے ہیں اور پشاور سے اب وہ خنجراب چائنا کے بارڈر تک جائیں گے. ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اور یہ راستے میں جو آئے انہوں نے کن کن صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں، اور ابھی یہ پشاور سے کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. میرے ساتھ ریحان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ریحان صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو پشاور میں. بہت شکریہ. یہ بتائیں آپ کراچی میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شوق آپ کے ذہن میں، یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جناب میرا تعلق کراچی ماڈل کالونی سے ہے، ملیر سے ہے، اور یہ جو شوق اور اس کا جو خیال ہے یہ بڑا پرانا ہے. سیاحت کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے، پاکستان کے مختلف ایریاز کو دیکھنے کا، گھومنے پھرنے کا، اور یہ منفرد شوق میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا. اور جب بھی گھومتے پھرتے رہے پاکستان کے مختلف ایریاز کو تو کسی نہ کسی مین آف ٹرانسپورٹ کا سہارا لیا. اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ یونیک ایسا آئیڈیا لگایا جائے جس کے اندر پاکستان کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلور کرنے کا موقع ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملے. اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے ریحان دی ٹریولر کے نام سے، اور جناب سفر کے لیے نکل گئے اور پورے پاکستان میں گھومتے پھرنے کا ارادہ جو ہم نے رکھتے ہیں. تو پشاور میں اس وقت ہم موجود ہیں اور تقریباً 1400 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے ہیں، اور خنزراب پاس کی طرف جاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی مزید 1100 کلومیٹر کا فاصلہ ہم طے کریں گے. یہ بتائیں آپ کے ساتھ بھابھی بھی ہیں، یہ ان کی خواہش تھی کہ آپ ان کو زبردستی اپنے ساتھ لائیں؟ نہیں، یہ سفر ایکچول مجھے اکیلے کرنا تھا. یہ میرا خواب تھا کہ پاکستان کو اس انداز میں ایکسپلور کروں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس پورے سفر کے دوران 4 مہینے 3 مہینے کا ٹائم مجھے لگتا، اور یہ میرے ساتھ اس وجہ سے ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں پاکستان کو. اور لیکن ظاہر سی بات ہے صنف نازک کے لیے اتنا زیادہ ڈسٹینس کور کرنا، وہ بھی پیدل، بہت مشکل تھا. تو ان کو پھر فزیکلی ٹریننگ دی میں نے، 40 دن 42 دن کا ان کو ٹرین کیا میں نے ہر طرح سے، کہ مسلز وغیرہ ان کے چیک کیے کہ چھالے وغیرہ نہ پڑیں اور اس طرح کے ایشوز سفر کے دوران نہ آئے. الحمدللہ 1400 کلومیٹر کا انہوں نے زائد کا فاصلہ انہوں نے بڑی اچھی طرح طے کیا ہے، اور میرے سے زیادہ داد کی مستحق یہ ہیں. یہ بتائیں یہ جو آپ نے ان کو ٹریننگ دی ہے، یہ شادی سے پہلے دی تھی، شادی کے بعد یہ ٹریننگ دی ہے، وہ کیا نکاح میں یہ شرط تھی کہ آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا پیدل؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے 40-42 دن ہم نے ٹریننگ بھی کی تھی، اور ایسی کوئی شرط نہیں تھی شادی کے حوالے سے. گھومنے پھرنے کا شوق ہر انسان کا ہوتا ہے، اور اس سفر کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کو ایکسپلور کریں، ان خوبصورت مقامات کو ایکسپلور کریں جنہیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. اور اس سفر کو جان بوجھ کر ہم نے لینتھی بھی کیا ہے. اگر ہم سندھ والے راستے سے اور پنجاب والے راستے سے پاکستان کو ایکسپلور کرتے تو وہ 2200 کلومیٹر کا سفر بنتا تھا، لیکن ہم نے خاص طور پہ بلوچستان کا رخ کیا. پورے بلوچستان سے ہوتے ہوئے ہم آئے، اور کے پی کے میں بھی مختلف موٹر وے کے سہارے سے ہم اپنے سفر کو مختصر کر سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کر ان ایریاز کو ہم دیکھنے کی خواہش ہماری تھی، اور ہم نے قریب سے دیکھا اور اپنے ویورز تک پہنچایا ہے جنہیں ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے تمام قومیت کو بھی میں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام قومیت کے جو لوگ ہیں وہ مہمان نواز ہیں، پرامن ہیں، ان کی ثقافت، کلچر، ان کا کھانا پینا، ان کی رہن سہن، ان کی طرز زندگی کو قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے ویورز تک بھی پہنچا رہے ہیں. بھابھی تو آپ کی زوجہ تھیں، انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا. کیا ان کے اہل خانہ نے آپ سے نہیں کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، خود تو جا رہے ہو پیدل، اب ہماری بیٹی کو بھی ساتھ پیدل گھماؤ گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ میرے جو سسرالی ہیں وہ بڑا مجھے لائک کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. لائک کرتے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹی دی ہے نا، لائک نہ کرتے پھر کون دیتا ہے؟ جی بالکل، وہ مطمئن ہے میرے ساتھ. ابھی بھی سفر کے دوران جب ہم نے یہ سفر آغاز کیا تھا تو کسی کو بھی، نہ میری فیملی کی طرف سے نہ ان کی فیملی کی طرف سے، ہم نے کسی کو بھی باخبر نہیں کیا تھا،
क्योंकि ये सफ़र आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक भी था। तो अगर किसी को कहते तो आगे से हमें ममानियत का सामना करना पड़ सकता था, तो हमने किसी को भी शेयर नहीं किया था। सफ़र में हम जब निकल गए, जब वीडियोस वगैरह हमने अपलोड कर दिया, तीसरे शहर में हम पहुंच चुके थे कराची से निकल के, फिर सबको पता लगा है जब हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस वगैरह अपलोड किए तो पता लगा है कि हम लोग सफ़र में निकले हुए हैं। जैसे कि आपने कहा आप कराची से बलूचिस्तान फिर खैबर पख्तूनख्वा आए हैं, हर जगह का अपना कल्चर है, अपनी रिवायात हैं। आपने कराची, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या तफरीक पाई है? पूरे सफ़र के दौरान जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कराची शहर से मेरा ताल्लुक़ है, बड़ा शहर है, ज़्यादा आबादी, तेज़ लाइफ है वहाँ के लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। पूरे सफ़र के दौरान जो बड़े शहर के लोग थे उनकी आदतें और उनकी सोच, उनका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम छोटे छोटे विलेजेस से होकर गुजरे तो वहाँ के लोगों की जो मोहब्बत और वहाँ के लोगों की जो रिवायात है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और बहुत ज़्यादा वहाँ के छोटे छोटे विलेजेस के लोगों ने हमें स्टे दिया खाने पीने के लिए, और हर तरह की मौसम की सख्ती थी उसमें भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा की, और हमारे सफ़र में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की। बहुत ज़्यादा फ़र्क मैंने देखा है कि छोटे विलेजेस के लोगों में और बड़े शहर के लोगों में। ये बताएं, आपके पास सामान थोड़ा मुख्तसर सा नज़र आ रहा है, ये मौसम सर्द है, पेशावर में भी मौसम जो अभी सूरत हाल है काफ़ी सर्द है मौसम, बलूचिस्तान के भी इलाके जो कोयटा है उसमें बाज़ इलाके ऐसे जो शदीद सर्द हैं, तो सर्दी से बचाव के लिए आपने क्या इक़दाम उठाए हैं? हमारे पास बैग में गर्म कपड़े मौजूद हैं, एक्स्ट्रा कपड़े मौजूद हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हम लेकर चलते हैं, पानी भी एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा हुआ होता है। और मौसम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमने प्लान इस तरीके से किया था कि जब हमने सफ़र का आगाज़ किया था तो हमें पता था कि किस वक्त तक बर्फ़बारी के इम्कानात होते हैं बलूचिस्तान के स्नोफॉल एरियाज़ में। तो उन एरियाज़ को हम क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद हमें पता लगा कि बर्फ़बारी हो चुकी है। अभी भी जब हम सफ़र का आगाज़ किए हुए हैं तो गिलगित और हुंज़ा में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस है, 15-18 माइनस चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जितना टाइम हमें लगेगा तो वहाँ पे मौसम में इंशाल्लाह ताला फ़र्क आ जाएगा। और एक अनयूजुअल सी चीज़ यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में ये हुई है कि इस दफ़ा मौसम जो है बिल्कुल ही मुनफरिद रहा। उन इलाकों में भी बर्फ़बारी पड़ी है जिन इलाकों में पिछले 3-4 सालों से बर्फ़ नहीं पड़ी थी। तो मौसम की तब्दीली और मौसम का ठंडा होना, इन सारी चीज़ों का सामना इंशाल्लाह ताला करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे। देखें, आप कराची से आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का जो सिंध और पंजाब है उसमें एक तासर है उनके लोगों के जहनों में कि यहाँ पे दहशत गर्दी है, अमन अमान की अबतर सूरत हाल है। कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके जहन में जो गलत साबित हुए ये सफ़र के दौरान? नहीं, जितनी ज़्यादा बातें की जाती हैं ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे और लोगों के जहनों में ये बात है कि बलूचिस्तान और KP के सिंध, पंजाब, तमाम जगह पाकिस्तान के तमाम शहरों में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ये ख़तरनाक इलाके हैं, ये नो गो एरियाज़ हैं, यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी के ख़दशात हमने नहीं देखा। बड़े मज़े से हमने सफ़र किया है और वहाँ के मकामी लोगों ने हमारी बड़ी हेल्प की है सफ़र के दौरान, तो कोई ऐसा इशू नहीं देखा हमने। आपने सफ़र किया है और कई सौ किलोमीटर आपने फ़ासला तय कर लिया है, अभी आप कई सौ किलोमीटर आपकी मंजिल की जानिब फ़ासला आपका रहता है जो आपने रास्ता तय करना है। ये रास्ते के अखराजात कौन उठा रहा है? कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपको? आपका ज़र माश क्या है कि आप निकले हुए भाभी को लेके? तो ज़ाहिर इसके लिए तो कुछ इस पर कुछ अखराजात भी होते हैं, लागत, वो जो खर्च होते हैं वो किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? हम दोनों ग्रेजुएट हैं, ये तो हाउसवाइफ हैं, और मेरा जो है अपना कारोबार इस वक्त मैं करता हूँ स्टेशनरी का, और मेरा कारोबार पिछले 15 साल से मैं कारोबार कर रहा हूं। तो मेरे लिए इस सफ़र के लिए ख़र्चा उठाना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितना बजट में लेके निकला था, जितना बजट मैंने बनाया हुआ है उस बजट से कम ही लग रहा है अभी तक, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे जब हम रुके हैं तो हमारी रिहाइश, हमारा खाना पीना और ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हमने अपना ख़र्चा भी किया है, ज़रूरत की चीज़ें भी ख़रीदनी पड़ी सफ़र के दौरान। जब हम निकले हुए हैं 2-3 महीना लग चुका है। तो मैं बिज़नेस करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर सकता हूँ, और पूरा 4 से 6 महीने का बजट बना के निकले हैं। जब भी आप सफ़र करते हैं तो उसमें मुश्किलात ज़रूर आड़े आती हैं, इनको आप खारिज से इम्कान नहीं कह सकते। आपने किन मुश्किलात का सामना किया है? भाभी को किन मुश्किलात का सामना था? आपको किन मुश्किलात का सामना था? ज़ाहिर है इतना तवील सफ़र आपने तय किया है तो इस दौरान लाजमी मुश्किलात आपके सामने कोई ना कोई आएंगी, तो कौन सी मुश्किलात थी और फिर आप उससे किस तरह निपटे हैं?
सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मरहला था हम लोगों के लिए रात गुजारना, नाइट स्टे करना। उसके लिए हमने नाइट स्टे करने के लिए कैंप हमने अपने पास रखा हुआ है, और कैंप का हिसाब ये है कि फैमिली के साथ सफ़र कर रहा हूँ तो सारा सामान वगैरह और इनको कैंप के अंदर नाइट स्टे करवाता था, और मैं ख़ुद बाहर स्टे कर रहा होता था। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हाईवेज़ के होटल पे भी हमने स्टे किया। बाज़ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे दूर दूर तक ना कोई आबादी थी और ना कोई होटल्स थे, तो वहाँ पर हमने कैंपिंग भी की। लेकिन कैंपिंग का तजुर्बा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहा, और वो मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किया है। आगे हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैंपिंग की जो है सूरत हाल ना हो, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोगों के घरों में स्टे करें या किसी होटल में स्टे करें। तो इस तरह की सिचुएशन रही। बास टाइम पे खाने पीने के भी मसाइल रहे। दूर दूर तक कोई खाने पीने के लिए कोई होटल्स वगैरह नहीं थे। पैरों में छाले भी पड़े, अगर फिटनेस के हवाले से बात की जाए, इस क्रैम्प्स पड़े, मसल्स पेन हुआ, और पैरों में सोजिश भी आई। मेडिसिन्स वगैरह हम लेकर चले थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े शहरों में जब हम गए तो वहाँ पर फिर थोड़ा ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा स्टे किया। जैसे कि इस वक्त पेशावर में हम मौजूद हैं, तो एक दिन हमने एक्स्ट्रा क़याम किया और अपने आप को आगे के सफ़र के लिए तैयार किया। ये भाभी का पहला सफ़र है आपके साथ? नहीं, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ ये मेरे साथ कई दफ़ा सफ़र पे निकली हैं, लेकिन ये पैदल सफ़र गालिबन दूसरी दफ़ा है। एक दफ़ा 22 किलोमीटर के बाद कराची में ये फ़ेल हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कराची से पेशावर तक पहुंच गई हैं। माशाल्लाह। और अभी आप पेशावर से कहाँ जा रहे हैं? अभी हम पेशावर से जाएंगे नौशहरा। नौशहरा के बाद इंशाल्लाह ताला हसन अब्दाल, जहाँ से कुराकरम हाईवे शुरू होता है, और कुराकरम हाईवे के अख्तिताम पर इंशाल्लाह ताला हमारी मंजिल हमें मिलेगी। जी नाज़रीन, इनके साथ इनकी अहलिया हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने इस सफ़र के दौरान क्या क्या महसूस किया, कौन सी जगह इनको अच्छी लगी है और कौन सी जगह का खाना इनको ज़्यादा भाया इनके दिल को। भाभी, आप इनके साथ सफ़र कर रही हैं और पहला सफ़र है आपका पैदल, तो ये बताएं कि आपको दिल में को पछतावा हो रहा है कि यार ये मैं किस सफ़र पे निकल पड़ी हूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सफ़र मेरा भी एक ड्रीम था इनके साथ कि मैं ये सफ़र पूरा करूं, तो इस वजह से मैं निकल पड़ी, और मुझे अभी कोई पछतावा नहीं है इस बात का कि मैं निकली। ये बताएं, आपको कौन सा शहर सबसे अच्छा लगा है, और किस शहर का जो खाना था, जो उनकी मखसूस एक डिश होती है, वो आपको अच्छी लगी कि हाँ यार ये वो ज़बरदस्त, इसको जाके कराची में हमने ट्राई करना है, बनाना है इसको? मुझे शहर वैसे क्या कहते हैं, कोयटा और दरादम खेल पसंद है। और खाने मुझे यहाँ पेशावर के अच्छे लगे, क्योंकि इसका जो टच है ना, ये कराची जैसा है, वहाँ के खानों जैसा है। और यहाँ के बहुत सारे खाने, एक वो चिमकी है ना, चिमकी, तो वो भी अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ के खाने अच्छे हैं। आपको शहर कौन सा अच्छा लगा है? मुझे दरादम खेल और धनासर। इनमें कौन से मकामात थे जो आप कह रहे हैं कि हाँ यार ये दीद के काबिल थे? मतलब वो खूबसूरत है शहर। धनासर जो है, कोहे सुलेमान का जो पहाड़ी सिलसिला है, वो बहुत ज़बरदस्त था। आप जो और हमारे देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह ट्रैवल करें, कौन कौन से इलाके हैं उनको एक्सप्लोर करने चाहिए? वैसे तो पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है, लेकिन जो है उनको, अगर मैं कहूँगी कि आना चाहिए कोहे सुलेमान वाली साइड पे। अगर ब्यूटी का मतलब उनको शौक़ है तो कोहे सुलेमान बहुत अच्छा है। अभी आगे इंशाल्लाह जाएंगे तो आगे की खूबसूरती और बताएंगे। कराची, पेशावर और बलूचिस्तान के माहौल में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? कराची और पेशावर का माहौल मुझे सेम लगा। दोनों मतलब तेज़ रफ्तार शहर हैं। और बलूचिस्तान मतलब अच्छा है, वहाँ ज़रा आबादी के लिहाज से थोड़ा कम है और अच्छा है, खूबसूरत, मेहमान नवाज है। फैमिली से बात होती है आपकी? जी बिल्कुल। वो इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? वो लोग माशाल्लाह खुश हैं। वो मुफ्त में सैल कर रहे हैं? खुश है माशाल्लाह, दुआएं दे रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कब सफ़र ख़त्म होगा, कब हम वापसी आएंगे।
जी नाजरीन, रेहान साहब से मज़ीद बातें करते हैं, कुछ इनसे बात करते हैं। इनका अपने दोस्तों से रब्ता होता है तो दोस्त इनसे लाजमी कोई फरमाइश करते होंगे। क्या किसी दोस्त ने फरमाइश की पेशावर से ये लेते आना, जैसे कहते पेशावर से मेरे लिए दंदासा लाना और इस तरह कुछ होते, कुछ फरमाइश की दोस्त ने किसी ने? हाँ, कुछ दोस्तों की मेरे पास कॉल आई थी कि वापसी में हमारे लिए ड्राई फ्रूट ज़रूर लेकर आना। अभी तो सफ़र हमारा जारी है, इंशाल्लाह ताला वापसी में ड्राई फ्रूट वगैरह उनके लिए लेके ज़रूर जाऊँगा। जैसे कि आप जा रहे हैं खुंजराब जा रहे हैं, वहाँ पे बर्फबारी होती है, मौसम शदीद सर्द है, तो उसके बचाव के लिए आपने क्या इकदाम उठाए हैं? सर, गर्म कपड़ों की हमारे पास इंशाल्लाह ताला तैयारी है और सफ़र के दौरान इंशाल्लाह ताला मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करने की अहलियत है। जब हम सफ़र कर रहे थे तो सोराब के अंदर और कल्लात और खानू ज़ई वगैरह कान मेहतर ज़ई वाली साइड पे भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। ये है कि सफ़र के दौरान पैदल चलने में तो इतनी ज़्यादा सर्दी का पता नहीं चलता, लेकिन जब नाइट स्टे करते हैं तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मौसम की सख्ती से बचा जाए। तो इंशाल्लाह ताला तैयारी है और हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। ये बताएं, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और आपकी ख्वाहिश हो कि मौका मिले तो आप दोबारा वहाँ जाना चाहेंगे? पाकिस्तान के तो सारे शहर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इस सफ़र के दौरान दर्रा आदम खेल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जिस तरह की वहाँ पे खूबसूरती है, जिस तरह की वो वादी है और वहाँ के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं और उस इलाके को ज़ाहिर सी बात है सैकड़ों साल पुरानी वहाँ की असला की जो मार्केट है उस वजह से दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ पाकिस्तान के दूसरे इलाके के जो लोग हैं असला की मार्केट की वजह से उस एरिए को ख़तरनाक मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत शहर है और मैं दर्रा आदम खेल बार बार जाना चाहूँगा। और दूसरा सबसे मेरा फेवरेट जो है वो कोयटा शहर है। कोयटा शहर की रौनक, वहाँ के लोगों का अखलाक, वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, वहाँ का मौसम, वहाँ का खाना मुझे बेहद पसंद है। ये जो दो इलाके आपको पसंद हैं, वहाँ पे पश्तो ज़्यादातर बोली जाती है, उनकी अपनी ज़बान है। खैबर जो दर्रा आदम खेल इधर पश्तो बोलते हैं, तो ये जो ज़बान का एक मसला होता है वो ज़्यादा दरपेश तो नहीं आया? हाँ, ज़बान का मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, उर्दू बोलने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है किसी भी शहर में जाता हूँ तो टूटी फूटी उर्दू तो कोई ना कोई बोल ही लेता है। तो पूरे पाकिस्तान में ये कौमी ज़बान की हैसियत है, तो मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उर्दू समझते हैं, बोलते हैं। तो ज़बान का थोड़ा सा मसला आया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया। आप जो हमारे देखने वाले हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे सफ़र के दौरान? अपने तजर्बात की बुनियाद पर अगर आप उनको कोई मशवरा दें तो वो क्या होगा? मशवरा मैं ये दूंगा कि कौमियत परस्ती से बाहर निकलें, मज़हब परस्ती से बाहर निकलें, फ़िरका वारियत से, लसानियत से बाहर निकलें, नफ़रत फैलाने से बाज आ जाएं। और 78 साल हमने ज़ाया कर दिए हैं। इतनी खूबसूरती का हामिल ये मुल्क, ज़रई ज़मीन होने के बावजूद, समुंदर, दरिया, हर तरह के मिनरल्स होने के बावजूद, और इतने मेहनती, मोहब्बत करने वाले जफाकश लोग तमाम कौमियत के, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं 78 सालों में? हमने अपना वकार गिरा दिया। पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द समझती है। हम सिर्फ लसानी बुनियादों पे आपस में लड़ते रहते हैं। शहरी इलाकों को आप देख लें, देहाती इलाकों से नफ़रत करते हैं, देहाती इलाके वाले शहरी इलाकों से नफ़रत। एक कंपटीशन सी बनी हुई है। कराची का एक अपना इमेज बना हुआ है, वो दूसरे किस्म के वहाँ के गैर मकामी लोगों से नफ़रत करते हैं। लाहौर में जाएंगे तो इस तरह की कंडीशन नज़र आती है। इसके अलावा सियासी अफरा तफरी आपको हर तरफ नज़र आती है, और तालीम और बुनियादी चीज़ों से, सेहत से और बिजली, पानी, गैस, इन मसाइल में 78 सालों में हम उलझ के रह गए और उस तरीके से तरक्की भी नहीं कर पाए और उस तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाए कि जिस तरह से दूसरी दुनिया के लोग एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। सिर्फ़ और सिर्फ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़्यादातर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं इस वक्त। आप जाके GDP देखें हमारा कितना गिरता जा रहा है, और सियासी अफरा तफरी ने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है। एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने में पूरा दिन लगा देता है और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। तो निकले जनाब, अपने इन नफ़रतों को दूर करें। और ये पैगाम देना चाहूँगा तमाम कौमियत के लिए। कितनी सारी कौमियत के लोगों से हमारी मुलाकात होती रही, कोई भी कौम बुरी नहीं है, तमाम कौमियत के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ज़रूरत सिर्फ इस तरह की है कि आप अपने रवैये को और अपने अखलाक को बुलंद करें। आपके शहर में जो गैर मकामी लोग आते हैं उनको खुश दिली के साथ वेलकम करें, उनके लिए
आसानियाँ पैदा करें। जितने शहरों से भी हम निकल के गुजर के गए हैं तो वहाँ पर हमारी बहुत अच्छी यादें बनी है। इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ। पेशावर बाइकर्स क्लब ने बहुत प्यारी हमारी मेहमान नवाजी की है। पूरे पेशावर की तरफ से उन्होंने आप लोगों की तरफ से रिप्रेजेंट किया है अपने शहर को। बड़ी अच्छी यादें लेकर निकल रहे हैं। कोहाट में कोहाट बाइकर्स थे, मरवत बेल्ट में गए, फिर इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ में, बलोच एरियाज़ में जब हम गए तो वहाँ के बलोचों ने हमारी बड़ी खातिरदारी की है। तो इन नफ़रतों से निकलें, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को उस तरीके से एक्सप्लोर करें, यहाँ पर अमन व अमान को कायम करें, नफ़रतें ख़त्म करें। दुनिया हमसे बाद में आज़ाद होने वाली जो मुमलिकत हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आज हम बुनियादी ज़रूरत से बिल्कुल महरूम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी नाजरीन, आपने रेहान साहब की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि हमें कौमियत और फ़िरका वारियत से निकलना होगा। पाकिस्तान एक खूबसूरत वतन है, यहाँ पे समंदर, दरिया, खेत खलियान हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसे बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम बहैसियत पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में एक आला और मुनफरिद मकाम हासिल कर सकता है। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।